وادی کشمیر کی آزادی کے لیے کوشش، ایک مجاہد کی سنسنیخیز داستان آپ کے لیے پیش خدمت ہے مشن کشمیر۔ دوسرے روز دن چڑھے اورنگزیب کمانڈو سے ملاقات ہوئی تو میں نے اسے اپنی گرفتاری اور پھر نالے میں چھلانگ لگا کر فرار ہونے اور شیر علی کے ساتھ کشمیری عورت کو بحفاظت اس کے ماں باپ کے پاس پہنچانے اور ڈوگرا سپاہیوں کی لاشوں کو ٹھکانے لگانے کی کارگزاری سنا دی۔ وہ بڑا خوش ہوا، کہنے لگا میں تو کسی طرح وہاں سے نکل آیا تھا مگر مجھے تمہاری فکر تھی۔ ہم سب اس بات پر پریشان تھے کہ ہمارے ٹائم بم وقت پر نہیں پھٹے تھے، ہمیں ان بموں کے ٹائم ڈیوائس پھر سے چیک کرنے پڑیں گے۔ کمانڈر شیروان نے اپنے 2 آدمیوں کی ان کی چیکنگ کی ڈیوٹی لگا دی ہے۔ میں نے کمانڈو اورنگزیب سے پوچھا، اس دھماکے کے بعد تو بھارتی فوجیوں نے شہر میں اپنی ظالمانہ کارروائیاں تیز کر دی ہوں گی۔ وہ بولا، کمانڈر شیروان کے پاس ساری رپورٹیں پہنچ چکی ہیں، ہمیں معلوم ہوا ہے کہ بھارتی فوج نے مجاہدین کے ایک ٹھکانے پر حملہ بھی کیا ہے مگر خوش قسمتی سے اس وقت وہاں کوئی مجاہد نہیں تھا، ویسے فوج نے کئی لوگوں کو گرفتار کیا ہے۔ چلو کمانڈر شیروان کے پاس چلتے ہیں، وہ تمہارے جاگنے کا انتظار کر رہا تھا۔ ہم دونوں غار کے اندر کمانڈو شیروان کے خفیہ ہیڈ کوارٹر میں آ گئے۔ کمانڈو شیروان گیس کی روشنی میں میز پر بچھے ہوئے نقشے کو جھک کر دیکھ رہا تھا، اس کے سر پر سبز رومال بندھا ہوا تھا۔ ہمیں آتا دیکھ کر اس نے کہا، پہاڑی گیریزن کی تباہی پر بھارتی فوج میں زبردست اضطراب پھیلا ہوا ہے، فوج بوکھلا کر اندھا دھند پکڑ دھکڑ کر رہی ہے، فوجی ہائی کمانڈ کی یہ سب سے بڑی شکست ہے۔ میں اور کمانڈو اورنگزیب میز کے پاس ٹولوں پر بیٹھ گئے۔ میں نے پوچھا، اس آپریشن میں کتنے بھارتی سپاہی مرے ہوں گے؟ کمانڈو شیروان نے کہا، ہم تک جو خبریں پہنچی ہیں ان کے مطابق انفینٹری ریجمنٹ کے کم از کم 1500 فوجی اس وقت پہاڑی گیریزن میں موجود تھے اور ظاہر ہے اتنی بڑی تباہی کے بعد ان میں سے کوئی بھی نہیں بچا ہوگا۔ کمانڈو اورنگزیب بولا، سر مجھے لگتا ہے کہ بھارتی فوج اس کے جواب میں کوئی زبردست جوابی کارروائی کرے گی۔ کمانڈو شیروان نے کہا، ہمارے کشمیری مجاہد غافل نہیں ہیں، وہ ان کی ہر جوابی کارروائی کا اسی شدت سے مقابلہ کریں گے، ہم بھی تیار بیٹھے ہیں۔ اصل میں انڈیا کی حکومت اپنی فوج کشمیر میں بھیج کر سخت پریشان ہے، اس نے فوج کے ذریعے آزادی کشمیر کی تحریک کو دبا کر کشمیریوں کے حق خود اختیاری کو کچل کر کشمیر پر غاصبانہ قبضہ کرنا چاہا تھا، جس میں وہ پوری طرح ناکام ہو چکی ہے۔ اگر ہمارے مجاہد شہید ہو رہے ہیں تو بھارتی فوجی بھی ہلاک ہو رہے ہیں، بلکہ بھارتی فوجیوں کی ہلاکت کی رفتار زیادہ تیز ہے۔ ہم باتیں کر رہے تھے، کمانڈو شیروان کا خاص باڈی گارڈ اندر آیا، اس نے ایڑیاں جوڑ کر سلوٹ کیا اور کہا، کمانڈو بابر علی شہر سے کوئی خاص خبر لے کر آیا ہے۔ کمانڈو شیروان نے کہا، اسے فوراً اندر بھیج دو۔ وہاں خاموشی چھا گئی۔ اورنگزیب نے آہستہ سے کہا، مجھے خیر کی خبر نہیں لگتی۔ مجاہد بابر علی نے اندر آ کر کمانڈو شیروان کو سلام کیا اور خاموش کھڑا ہو گیا۔ شیروان نے کہا، کیا خبر لائے ہو؟ بابر علی نے کہا، کمانڈر ابھی تھوڑی دیر پہلے بھارتی فوجیوں کے ایک دستے نے سری نگر کے شمالی محلے میں آ کر 15 مکانوں کو آگ لگا دی ہے اور تحریک حریت کے بزرگ کارکن اور محلے کے جامع مسجد کے امام حاجی ثناء اللہ ڈار کی نوجوان بیٹی پروین ڈار کو اٹھا کر لے گئے ہیں۔ کمانڈو شیروان کے چہرے کا رنگ سرخ ہو رہا تھا، وہ سٹول سے اٹھ کھڑا ہوا، ہم بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ ایک لمحے کے لیے گہرا سکوت طاری ہو گیا۔ کمانڈو شیروان نے پوچھا، فوج پروین ڈار کو کہاں لے گئی ہے؟ بابر علی نے نفیر میں سر ہلاتے ہوئے کہا، کچھ معلوم نہیں، عینی شاہدوں کا بیان ہے کہ انہوں نے لڑکی کو اٹھا کر جیپ میں ڈالا اور کسی نامعلوم مقام کی طرف لے گئے۔ پروین کی ماں اور چھوٹی بہن کو زدوکوب بھی کیا۔ اس وقت گھر پر پروین کا والد حاجی صاحب موجود نہیں تھے۔ شیروان سٹول پر بیٹھ گیا، غصے میں اس کا جسم کانپ رہا تھا۔ اس نے میز پر زور سے مکہ مارتے ہوئے کہا، ہم اس بزدلانہ کارروائی کا بدلہ لیں گے، لیکن ہمیں سب سے پہلے حاجی صاحب کی بیٹی پروین کو انڈین فوج کے قبضے سے چھڑانا ہوگا، ہم اس ظلم کو برداشت نہیں کر سکتے۔ پھر اس نے بابر علی کی طرف دیکھا اور کہا، بابر علی، یہ تمہاری ڈیوٹی ہے کہ شام ہونے سے پہلے حاجی صاحب کی بیٹی کا پتہ لگاؤ کہ فوج نے اسے کہاں رکھا ہے اور اس کے ساتھ کوئی ناروا سلوک تو نہیں کیا گیا، ابھی جاؤ۔ بابر علی نے سینے پر زور سے ہاتھ مار کر سلام کیا اور واپس چلا گیا۔ کمانڈو شیروان کے علاوہ ہم دونوں پر بھی ہیجان کی کیفیت طاری تھی۔ میں نے کہا کہ ہم اس کے جواب میں ایریا کمانڈر کی فیملی میں سے کسی کو اغوا کریں گے۔ کمانڈو اورنگزیب نے کہا، ہم بھارتی ایریا کمانڈر سمیت اس کے سارے خاندان کو ہلاک کریں گے۔ شیروان کی اضطرابی کیفیت آہستہ آہستہ دور ہو رہی تھی۔ اس نے اپنے جذبات پر قابو پاتے ہوئے کہا، سب کچھ بعد میں ہوگا، سب سے پہلے ہمیں پروین کو درندہ صفت بھارتی فوجیوں کے چنگل سے نکال کر لانا ہوگا۔ پروین ایک مقامی کالج میں پروفیسر ہے، وہ ایک پڑھی لکھی، سنجیدہ مزاج، محب الوطن لڑکی ہے۔ میں اس فیملی کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ حاجی صاحب اگلے سال بیٹی کی شادی کرنے والے تھے۔ یہ حادثہ نہ صرف پروین بلکہ اس کے سارے خاندان کو برباد کر سکتا ہے۔
मैंने पूछा, इस इलाके में इंडियन मिलिट्री कमांड हेडक्वार्टर किस जगह पर है? शेरवान ने फिक्रमंद लहजे में कहा, इनका डिविजनल कमांड ऑफिस श्रीनगर के शुमाल में है, मगर सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि हाजी साहब की बेटी को फौज ने कहाँ रखा हुआ है। यकीनन फौज ने उसे यरगमाल बनाया होगा और वो उसके बदले हाजी साहब से इन मुजाहिदों का नाम पूछना चाहते होंगे जिन्होंने भारतीय फौज के ख्याल के मुताबिक पहाड़ी वाली फौजी छावनी को उड़ाया था। सारा दिन इंतहाई बदमज़गी में गुजरा। इस दौरान कमांडो शेरवान ने अपने एक खास आदमी को हाजी सनाउल्लाह डार के घर ये पैगाम देकर भेज दिया कि भारतीय दरिंदों ने उनकी बेटी को नहीं, हमारी बेटी को अगवा किया है। हम एक एक करके अपनी जानें कुर्बान कर देंगे और परवीन को जालिम भारतीय फौज की कैद से जरूर रिहा करवाएंगे। अभी शाम का अंधेरा पूरी तरह नहीं छाया था कि मुजाहिद बाबर अली आ गया। हम लोग गार के अंदर खास तहखाने में मौजूद थे। क्या मालूमात लाए हो? कमांडो शेरवान ने पूछा। बाबर अली ने कहा, कमांडर, एरिया कमांडर कर्नल भगत राम ने हाजी साहब को पैगाम भिजवाया है कि हम तुम्हें 2 दिन की मोहलत देते हैं। अगर 2 दिन के अंदर अंदर हमें इन कश्मीरियों के नाम और ठिकानों का पता न बताया गया जिन्होंने इंडियन इन्फेंट्री की 14वीं रेजिमेंट की छावनी को तबाह किया है, तो तुम्हारी बेटी का सर काट कर तुम्हारे घर रवाना कर दिया जाएगा। बाबर अली चुप हो गया। शेरवान ने कहा, आगे कहो। बाबर अली बोला, हमने अपने आदमियों को खबरदार कर दिया है। इनमें हमारे वो आदमी भी शामिल हैं जो फौज के डिविजनल हेडक्वार्टर में छोटे छोटे मुख्तलिफ काम करते हैं। इसका मतलब है अभी तक तुम्हें ये मालूम नहीं हो सका कि परवीन डार किस जगह पर कैद है। कमांडो शेरवान के इस इस्तफसार पर बाबर अली बोला, सर सुबह तक इसका भी सुराग मिल जाएगा। कमांडो शेरवान ने बाबर अली का शुक्रिया अदा किया और हाथ के इशारे से उसे जाने के लिए कहा। मुजाहिद बाबर अली सीने पर हाथ रख कर सलाम करके तहखाने से निकल गया। शेरवान बेचैन था, हम भी परेशान थे। शेरवान 15 फुट चौड़े और उतने ही लंबे गार के तहखाने और अपने हेडक्वार्टर में बेकरारी से टहलने लगा। वो बार बार अपनी मुट्ठियां भींच लेता। कमांडो औरंगजेब बोला, सर हमें खुद फौजी एरिया कमांड में जाकर परवीन का सुराग लगाना चाहिए। शेरवान स्टूल पर बैठ गया। कहने लगा, नहीं औरंगजेब, हम जज्बात में आकर कोई फैसला नहीं करेंगे। हम सोच समझ कर कोई कदम उठाएंगे। हमारे आदमी आज तक परवीन का पता लगा लेंगे, इसके बाद कोई प्लान बनाया जाएगा। एरिया कमांड पोस्ट पर जाकर महज कमांडो अटैक करने और 15-20 भारतीय फौजियों को हलाक करने से कुछ नहीं होगा, बल्कि इससे सूरत हाल मजीद बिगड़ जाने का अंदेशा है। वो रात हमने बेचैनी की हालत में गुजारी। आधी रात तक मैं, कमांडो शेरवान और कमांडो औरंगजेब तहखाने में बैठे मुख्तलिफ स्कीमों पर गौर करते रहे। आधी रात के बाद हम बादिल नखास्ता सोने के लिए उठकर अपनी अपनी जगहों पर चले गए। दूसरे रोज फजर की नमाज हम तीनों ने इकट्ठी पढ़ी। हम में से हर कोई खामोश था। रात को ही हमें ये खबर भी मिल गई थी कि श्रीनगर शहर में मुसलमान कश्मीरी हाजी साहब की बेटी के अगवा के खिलाफ घरों से बाहर निकल आए हैं और उनका कई जगहों पर फौज और पुलिस से टकराव भी हुआ है और कई जवान फौज की फायरिंग से जख्मी हुए हैं। शहर में जगह जगह डोगरा फौज गश्त लगा रही थी। दोपहर भी गुजर गई। दिन के 3 बजे के करीब बाबर अली वापस आ गया। उस वक्त भी हम अपने तहखाने में बैठे गौर फिक्र कर रहे थे। हम ज्यादा गौर फिक्र करने वाले लोग नहीं थे, हम अमल करने वाले मुजाहिद थे। हम कमांडो थे, हमारा काम एक्शन था। हम सिर्फ एक्शन से थोड़ी देर के लिए अपने प्लान के तमाम पहलुओं पर गौर करते और फिर मैदान अमल में मर्द मुजाहिद की तरह कूद पड़ते। और जहाँ ये हालत थी कि कल दोपहर से हम बेअमली की हालत में हाथ पर हाथ धरे बैठे थे और सिवाय गौर फिक्र करने के और कुछ नहीं कर सकते थे। बाबर अली आया तो कमांडो शेरवान ने पूछा, क्या पता चला परवीन का? मुजाहिद बाबर अली ने कहा, कमांडर, हमारे आदमी पूरी सुराग रसानी करने के बाद जो खबर लाए हैं वो ये है कि परवीन को फौज रातों रात वादी कश्मीर से निकालकर बजरिया हेलीकॉप्टर जम्मू तक ले गई है। जम्मू से उसे उसी रात दूसरे फौजी हेलीकॉप्टर के जरिए शिमला पहुंचा दिया गया है। इस वक्त परवीन शिमला के 8वें जाट रेजिमेंट की फौजी गैरिजन में कैद है। ये खबर मेरे लिए इसलिए हैरानकुन नहीं थी कि भारतीय फौज का कमांडर कर्नल भगत राम परवीन को बतौर मोहरे के इस्तेमाल करना चाहता था। श्रीनगर गैरिजन की इबरतनाक तबाही और सैकड़ों भारतीय फौजियों की हलाकत का बायस कर्नल भगत राम का पूरा कैरियर खतरे में पड़ गया था। उसका कोर्ट मार्शल भी हो सकता था, लेकिन खुदा जाने किस वजह से वो अपनी पोस्ट पर कायम रहा। लेकिन उसने तहरीक आजादी के सरगर्म बुजुर्ग कारकुन और श्रीनगर की बाइज्जत शख्सियत हाजी सनाउल्लाह की साहबजादी को अगवा करके यरगमाल बनाया और अब उसके बदले वो हाजी साहब से गैरिजन उड़ाने वाले कश्मीरी मुजाहिदों या कमांडोज के नाम और ठिकाने मालूम करके इंडियन फौजी हाई कमांड के आगे अश्कशोई करना चाहता था। इस हकीकत से हम सब पूरी तरह बाखबर थे। बाबर अली का बयान सुनने के बाद कमांडो शेरवान ने औरंगजेब की तरफ मुतवज्जे होकर कहा, कर्नल भगत राम ने हाजी साहब को 3 दिन की मोहलत दी है। जाहिर है हाजी साहब उसे अपने किसी मुजाहिद का नाम और ठिकाना नहीं बताएंगे और फिर ये काम कश्मीरी मुजाहिदों ने नहीं, हमने किया है। ऐसी सूरत हाल में 3 दिन गुजर जाएंगे और भारतीय फौज की शर्त पूरी नहीं होगी। तुम्हारा क्या ख्याल है?
क्या कर्नल भगत राम 3 दिन के बाद परवीन को कत्ल करके उसका सर, जैसा कि उसने खबरदार किया है, हाजी साहब के पास भिजवा देगा? कमांडो औरंगजेब कहने लगा, मेरा नहीं ख्याल वो ऐसा करेगा। उसके पास परवीन डार की शक्ल में एक ही तुरुप का पत्ता है। वो उसको जिंदा रखकर और यरगमाली बनाकर ज्यादा से ज्यादा फायदा हासिल करने की कोशिश करेगा, खासकर कि ऐसी हालत में कि जबकि कर्नल भगत राम के फौजी कैरियर के तबाह होने का खतरा है। मेरे ख्याल में वो हाजी साहब को मजीद मोहलत देगा और मोहलत में इजाफा भी कर देगा। कमांडो शेरवान ने मुझसे राय तलब की तो मैंने कहा, कमांडर तुम जो फैसला करोगे मैं इस पर जान की बाजी लगाकर अमल करूंगा। शेरवान ने बाबर अली से पूछा, बाबर अली मेरे भाई, मुझे यकीन है कि तुम्हारे आदमियों की रिपोर्ट मोतबर होगी। बाबर अली ने जवाब दिया, सर परवीन के जम्मू और जम्मू से शिमला ले जाने की रिपोर्ट मेरे एक ऐसे खास आदमी ने दी है जिसने जम्मू से खुद परवीन को एक कैप्टन और 2 भारतीय फौजियों के साथ हेलीकॉप्टर में टेक ऑफ करते देखा है। उसके बाद मेरे इस आदमी ने अपने खुफिया वायरलेस के जरिए जम्मू के अपने साथी से भी इसकी तस्दीक कर ली है कि जम्मू एयरपोर्ट पर परवीन को एक बड़े फौजी हेलीकॉप्टर में सवार करके शिमले की तरफ रवाना कर दिया गया है, जहां से 4 रेजिमेंट के फौजी गैरिजन में रखा जाएगा। इन लोगों की खबरें बिल्कुल सही होती हैं, मुझे इसका तजुर्बा हो चुका है। इनके आदमी जगह जगह फौजी रेजिमेंटों, पोस्टों वगैरह में मामूली कारीगरों की हैसियत से अपने अपने काम में लगे रहते हैं और बड़ी अहम मालूमात मुहैया करते रहते हैं। ये कोई कमांडो नहीं होते, ये आम मुहिब्बे वतन कश्मीरी थे। इनमें नौजवान भी थे और बूढ़े भी। वो जब पकड़े जाते थे तो अपने मुंह बंद कर लेते थे। भारतीय फौजी उन पर इस कदर तशद्दुद करते कि उनके पेट फाड़ दिए जाते, उनकी आंखें निकाल दी जाती, वो इसी हालत में शहीद हो जाते मगर अपने किसी साथी का नाम जबान पर न लाते। ये बड़े बहादुर और आज़ादी कश्मीर के नाम पर, अपने वतन की आज़ादी के नाम पर जान निछावर कर देने वाले निडर मुसलमान कश्मीरी थे। इनको किसी ने कोई ट्रेनिंग नहीं दी थी। इन्होंने सिग्नल कोर का कोई कोर्स पास नहीं किया था। इनके दिल में जिहाद का बेपनाह जज्बा था। इस्लाम और कश्मीर की आज़ादी की खातिर जान कुर्बान कर देने का नाकाबिले शिकस्त जज्बा था। इसी जज्बे ने इन्हें सब कुछ सिखा दिया था। ये गुमनाम कश्मीरी मुजाहिद थे जो अपने घरों से, अपने माँ बाप और बच्चों से दूर बैठे अपने वतन की खातिर अपनी जान के नजराने पेश कर रहे थे और आज़ादी कश्मीर की खातिर काम कर रहे थे। यही वजह थी कि कमांडो शेरवान को मुजाहिद बाबर अली की हासिल करदा रिपोर्टों पर पूरा यकीन था। उसने बाबर अली को वापस भेज दिया। अब हमारे सामने एक रास्ता मुतय्यन हो गया था। हम उस पर गौर करने लगे। कमांडो शेरवान ने कहा कि तुम दोनों को आज ही यहाँ से शिमले की तरफ निकल जाना होगा। उसने औरंगजेब की तरफ चेहरा उठाकर कहा, औरंगजेब तुम शिमले कई बार जा चुके हो, तुम उस शहर से अच्छी तरह वाकिफ हो और तुम्हें यह भी मालूम है कि हमारा एक खास आदमी वहाँ मौजूद है। वो इस सिलसिले में तुम्हारी मदद करेगा। तुम दोनों को मेरे खुफिया सिग्नल कोड का इल्म है। तुम वायरलेस ट्रांसमीटर पर मुझसे राब्ता कायम रखोगे। शिमले में हमारे खास आदमी के पास वायरलेस सेट मौजूद है। अगर यहाँ कर्नल भगत राम ने परवीन की मोहलत की मुद्दत में इजाफा किया तो हम तुम्हें वायरलेस पर खबर कर देंगे। कोई सवाल? हमने बैक जबान होकर कहा, नहीं सर। ओके, तुमको 15 मिनट जरूर तैयारियों के लिए दिए जाते हैं। 15 मिनट के बाद तुम दोनों यहाँ से अपने मिशन पर निकल जाओ। खुदा हाफिज। मैंने और कमांडो औरंगजेब ने शेरवान से मुसाफा किया। उसने हमें खुदा हाफिज कहा और हम दोनों तहखाने से बाहर निकल आए। हमारे पास सिर्फ 15 मिनट थे। एक कमांडो को ही वक्त की कीमत का अंदाजा होता है। हमें 15 मिनट के अंदर अंदर सब तैयारियां करनी थी। कमांडो औरंगजेब ने हाजी सनाउल्लाह डार की साहबजादी की शक्ल देखी हुई थी। मुझे उसकी तस्वीर दिखा दी गई। यहाँ मैं ये वजाहत कर देना जरूरी समझता हूँ कि मैंने हाजी साहब का नाम भी फर्जी लिखा है और उनकी बेटी का नाम भी फर्जी है। चूंकि वो लोग जिंदा हैं और कश्मीर की आजादी की जंग अपने अपने महाजों पर पूरे जज्बे और जोश से लड़ रहे हैं, इसलिए उनके सही नाम और कवायफ लिखना मुनासिब नहीं। कमांडो शेरवान ने शिमले में खुफिया काम करने वाले कश्मीरी मुजाहिद का जो असली नाम बताया था वो कुछ और था। उसका फर्जी नाम शमसुद्दीन होगा और शिमले के जिस बाजार में उसकी दुकान थी उस बाजार का नाम भी यहाँ बयान नहीं किया जाएगा। ठीक 15 मिनट के बाद मैं और कमांडो औरंगजेब अपने हाइड आउट से निकलकर एक खास समत को पहाड़ियों की जानिब चल पड़े। हमारे लिबास आम शहरियों वाले थे। हमारे पास कोई सफरी थैले वगैरह नहीं थे। हम ऐसे जा रहे थे जैसे यूं ही सैर सपाटे के लिए निकले हों। कमांडो इसी तरह सफर पर निकला करते हैं। औरंगजेब कश्मीर का रहने वाला खुश शक्ल गयूर नौजवान था। उसे अंग्रेजी और कश्मीरी के अलावा उर्दू जबान पर भी उबूर हासिल था। वो हिमाचल प्रदेश में बोली जाने वाली डोगरी जबान में भी महारत रखता था। मैं अंग्रेजी, गुजराती और थोड़ी थोड़ी कश्मीरी जबान भी सीख गया था। हिंदी जबान भी बोल लेता और पढ़ भी लेता। मैंने संस्कृत जबान भी थोड़ी सीख ली थी। संस्कृत बड़ी मुश्किल जबान है। मैं उसे लिख न सकता था, न पूरी रवानी से पढ़ सकता था। कुछ कुछ समझ लेता था।
कमांडो औरंगजेब कश्मीर, जम्मू और हिमाचल प्रदेश के सारे इलाके से वाकिफ था। शिमले में जो हिमाचल प्रदेश की हुकूमत का सदर मकाम था, काफी अरसा रह चुका था। शिमले के बाजारों और महल्लों से वो अच्छी तरह वाकिफ था। हमने एक बस पकड़ी और जम्मू शहर में आ गए। जम्मू से बस पकड़ी और जालंधर पहुंचे। ये सारा सफर हमने एक दूसरे से अलग मगर एक दूसरे को अपनी निगाह में रखते हुए तय किया। जालंधर से हमें उसी रोज अंबाले जाने वाली लारी मिल गई। अंबाले से हम कालका और वहां से होते हुए छोटी लाइन की ट्रेन में सफर करते हुए शिमले पहुंच गए। शिमला में काफी सर्दी थी। अभी बर्फबारी का मौसम शुरू नहीं हुआ था, मगर सर्द हवाएं चलने लगी थीं और दरख्तों के पत्ते गिर रहे थे। शिमला शहर की मकामी आबादी बहुत है। बाहर से आए हुए लोग नीचे मैदानी शहरों की तरफ जा चुके थे। फिर शिमले की सड़कों पर काफी चहल पहल थी। माल रोड की दुकानों पर काफी रौनक थी। शिमले के छोटे से रेलवे स्टेशन पर उतरने के बाद मैं और औरंगजेब इकट्ठे हो गए थे। मैं शिमला पहली बार देख रहा था। कमांडो औरंगजेब ने चमड़े की जैकेट का जिप बंद करते हुए कहा, तुम यहाँ इस तरह चलोगे जैसे ये जगह तुम्हारे लिए नई नहीं। यहाँ खुफिया पुलिस के आदमी हर तरफ मौजूद रहते हैं। उन्हें ये एहसास नहीं होना चाहिए कि तुम शहर में अजनबी हो। कमांडो औरंगजेब की हिदायत के मुताबिक मैं उससे हंस हंस कर बातें करता हुआ चल रहा था। अपने रवैये और चाल ढाल से मैं यही तासुर दे रहा था कि हम इसी पहाड़ी स्टेशन के रहने वाले हैं। हमने गर्म ऊनी टोपियां पहन रखी थीं, गर्म जैकेटों की जिप चढ़ाए हुए थे। मेरी तरह कमांडो औरंगजेब भी कभी कभार सिगरेट पीता था, मगर शिमले की माल रोड पर से गुजरते हुए हमने सिगरेट सुलगा रखे थे और बड़ी बेतकल्लुफी से चल रहे थे। कोई आदमी सामने से आकर या पीछे से आकर हमारे करीब से गुजरता तो हम वहाँ की मकामी डोगरी जबान में बोलने लगते। जब हम शिमले के बड़े पोस्ट ऑफिस की पुरानी अंग्रेजों के जमाने की शानदार इमारत के पास पहुंचे तो कमांडो औरंगजेब ने आहिस्ता से कहा, सामने जो छोटी सड़कें ऊपर पहाड़ी की तरफ जाती हैं, हम उनमें से बाएं तरफ वाली सड़क पर जाएंगे। हम बिल्कुल साथ साथ चल रहे थे। सामने दो रास्ते आ गए। ये दो छोटी पुख्ता सड़कें थीं। हम बाएं तरफ वाली सड़क पर हो गए। थोड़ी सी चढ़ाई चढ़ने के बाद आगे एक खूबसूरत सरसब्ज ग्राउंड आ गई, जिसके जंगले के साथ दरख्तों की कतार दूर तक चली गई थी। एक तरफ छोटा सा खूबसूरत गिरजा था। गिरजे के बड़े गेट के सामने पार्क था। पार्क में बेंच बिछे हुए थे। औरंगजेब बोला, हम थोड़ी देर यहाँ रुकेंगे, और हम एक बेंच पर बैठ गए। उस वक्त सूरज शिमला की पहाड़ियों में गुरूब हो रहा था। शिमले की पहाड़ियों के नशेबी मकान और शहर की इमारतों पर शाम के सुरमई साए उतरना शुरू हो गए थे। सर्द हवा चल रही थी, मगर हम अपनी जैकेटों में खूब गर्म होकर बैठे थे। मैंने कमांडो औरंगजेब से बिल्कुल न पूछा कि हम यहाँ कितनी देर तक बैठेंगे। वो इस वक्त मेरा गाइड था और खुद ही बेहतर जानता था कि उसे क्या करना है और कहाँ जाना है। वो बड़ी गहरी निगाहों से सर घुमाए बगैर तीनों जानिब देख रहा था। फिर खुद ही कहने लगा, अभी तक खुफिया पुलिस का कोई आदमी हमारे पीछे नहीं है। यहाँ स्टेशन पर खुफिया पुलिस अजनबी लोगों का जरूर पीछा करती है। मैंने पूछा, हमारा हाइड आउट कहाँ होगा? कमांडो औरंगजेब इन दरख्तों की तरफ गौर से देख रहा था, जहाँ शाम का अंधेरा गहरा हो रहा था। कहने लगा, अभी कुछ मालूम नहीं। इसका फैसला अपने आदमी शमसुद्दीन से मिलने के बाद ही होगा। अब मेरे साथ आओ। हम एक होटल में बैठे चाय पीने लगे। हम उठकर ग्राउंड वाले जंगले के साथ साथ चलते शिमले के उस बाजार में आ गए जहाँ हर किस्म की दुकानें थीं और आबादी गुंजान थी। यहाँ विष्णु होटल का एक जगह बोर्ड लगा था। ये होटल एक दुकान की तरह था। अंदर कुछ लोग बैठे चाय वगैरह पी रहे थे। हम भी अंदर जाकर बैठ गए। औरंगजेब ने लड़के को 2 चाय लाने का कहा और अपने जूतों के तस्मे दुरुस्त करते हुए मुझे आहिस्ता से कहा, यहाँ हम अपने आप को हिंदू जाहिर करेंगे। जो चाहे अपना हिंदुआना नाम रख लेना। हमें रात का अंधेरा होने तक कुछ वक्त गुजारना है। होटल में मजदूर पेशा किस्म के पहाड़ी लोग बैठे चाय और सिगरेट पीते हुए ऊंची आवाजों में एक दूसरे से हंसी मजाक की बातें कर रहे थे। दुकानों की बत्तियां रोशन हो गई थीं। बाजार में हिंदू सिख मर्द और औरतें गुजर रही थीं। कोई शलवार कमीज पहने हुए थी, माथे पर तिलक लगा था। कोई साड़ियों में मलबूस थीं और कांधों पर गर्म शालें रखी हुई थीं। चाय वगैरह पीने के बाद औरंगजेब ने घड़ी पर वक्त देखा और बोला, अब चलना चाहिए। हम होटल से निकलकर बाजार में आ गए। 2-3 बाजारों से गुजर गए। थोड़ी चढ़ाई चढ़ने के बाद एक चौक आ गया। यहाँ से एक सड़क नीचे बाजार में जाती थी। इस बाजार में आलीशान दुकानें थीं। खूब रोशनियां हो रही थीं। एक दुकान के बाहर कश्मीर एम्पोरियम का बोर्ड लगा हुआ था। ये कश्मीरी शालों और लकड़ी के काम का कश्मीरी नवादरात की दुकान थी। दुकान काफी बड़ी थी। एक जानिब दीवार पर पंडित नेहरू की तस्वीर लगी थी, जिस पर फूलों का हार पड़ा हुआ था। गाहक काउंटर के पास खड़े नवादरात देख रहे थे। दुकान के आखिर में एक काउंटर के पीछे कुर्सी पर एक उधेड़ उम्र का कश्मीरी गर्म स्वेटर कोट और गुलूबंद पहने नजर की ऐनक लगाए बैठा अखबार पढ़ रहा था। उसकी दाएं जानिब छोटी मेज पर कुछ रजिस्टर और फाइलें पड़ी थीं। औरंगजेब यूं ही शोकेसों में नवादरात को देखता हुआ उस उधेड़ उम्र आदमी के पास आ गया। मैं उसके साथ ही था।
یہ شخص دکان کا مالک لگتا تھا۔ کمانڈو اورنگزیب نے اس کے قریب جا کر کہا، ہمیں چنار کی لکڑی کا قلمدان چاہیے، کیا آپ کے پاس ہوگا؟ اس آدمی نے اخبار پر سے نظریں ہٹا کر پہلے اورنگزیب کو دیکھا اور پھر میری طرف دیکھا۔ کہنے لگا، اس وقت تو نہیں ہے، 2-1 روز میں مال آنے والا ہے، شاید اس میں آ جائے۔ آپ یہ قلمدان دیکھیں، یہ دیار کی لکڑی کا ہے۔ اس نے شوکیس میں سے ایک قلمدان نکال کر ہمارے سامنے کاؤنٹر پر رکھ دیا۔ اورنگزیب اسے الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا۔ اس نے قلمدان مجھے دکھا کر کہا، تمہارا کیا خیال ہے شرما؟ ہم دونوں قلمدان دیکھنے لگے۔ اس دوران اس ادھیڑ عمر کشمیری نے، جو دکان کا مالک ہی تھا، ایک کاغذ پر کچھ لکھا اور بڑی رازداری سے کاغذ کا ٹکڑا کمانڈو اورنگزیب کے آگے کر دیا۔ کمانڈو اورنگزیب نے کاغذ کے اس ٹکڑے کو پڑھے بغیر جیب میں رکھا اور قلمدان کو کاؤنٹر پر پیچھے ہٹاتے ہوئے کہا، ہمیں چنار کی لکڑی کا قلمدان ہی چاہیے، ہم پھر آ جائیں گے۔ ادھیڑ عمر آدمی نے آگے سے کوئی جواب نہ دیا اور بڑی لا تعلقی سے کرسی پر بیٹھ کر دوبارہ اخبار پڑھنے لگا۔ ہم دکان سے باہر آ گئے۔ کمانڈو اورنگزیب مجھے ایک ریستوران میں لے گیا۔ یہ ذرا بہتر قسم کا ریستوران تھا اور پڑھے لکھے گاہک بیٹھے خاموشی سے چائے پی رہے تھے۔ میں اور کمانڈو اورنگزیب کونے والی میز پر بیٹھے تھے۔ اس نے جیب سے دکاندار کا دیا ہوا کاغذ کا ٹکڑا نکال کر میز کے نیچے ساتھ لے جا کر پڑھا اور کاغذ کو مروڑ کر اس کی گولی بنا کر جیب میں رکھ لیا۔ کہنے لگا، یہ دکاندار ہمارا آدمی شمس الدین تھا، اس نے مجھے رات 10 بجے کے بعد خفیہ ہائیڈ آؤٹ میں آنے کی ہدایت کی ہے۔ میں نے پوچھا، یہ خفیہ ہائیڈ آؤٹ کہاں پر ہے؟ کمانڈو اورنگزیب نے کوئی جواب نہ دیا۔ بیرا ہمارے لیے چائے لے کر آ رہا تھا۔ اورنگزیب نے سگریٹ سلگا لیا۔ ہمیں رات کے 10 بجے تک وقت گزارنا ہے اور ابھی صرف 7 ہی بجے ہیں۔ اس ریستوران میں زیادہ دیر بیٹھنا ٹھیک نہیں ہوگا۔ پھر تمہارا کیا مشورہ ہے؟ میں نے پوچھا۔ اورنگزیب کچھ سوچ کر بولا، ہم کسی سینما ہاؤس میں وقت گزاریں گے۔ ہم نے جلدی جلدی چائے پی اور ریستوران سے باہر آ کر ایک جانب چل پڑے۔ دوسرے بڑے چوک کے کونے میں ایک سینما ہاؤس تھا جہاں کوئی انگریزی فلم چل رہی تھی۔ فلم شروع ہو چکی تھی مگر ٹکٹ والی کھڑکی کھلی تھی۔ ہم نے گیلری کے 2 ٹکٹ لیے اور گیلری میں جا کر بیٹھ گئے۔ ہال میں اندھیرا تھا، اسکرین پر فلم کا سین چل رہا تھا۔ گیلری تقریباً خالی تھی۔ ہم ایسی جگہ بیٹھے تھے جہاں ہمارے آس پاس دوسرا کوئی نہیں تھا۔ اورنگزیب کہنے لگا، شمس الدین جہاں ایک طرح سے ہمارا ماسٹر سپائی ہے، اس نے ہائیڈ آؤٹ میں ایک چھوٹا ٹرانسمیٹر سیٹ بھی چھپا کر رکھا ہوا ہے۔ ہم وہاں سے کمانڈو شیروان سے بات کر سکیں گے۔ ہمارا مشن ذرا مشکل ہے، یہ ایکشن کا کم اور سراغ رسانی اور جاسوسی کا مشن زیادہ ہے۔ مجھے یقین ہے کہ شمس الدین کے آدمی جاٹ ریجیمنٹ کے گیریزن سے پروین کا سراغ لگا لیں گے۔ اس کے بعد ہمارا ایکشن کمانڈو مشن شروع ہوگا۔ انٹرول کے بعد ہم نے وہیں سینما ہال میں کچھ کھانے کے لیے منگوا لیا۔ انٹرول کے بعد فلم شروع ہوئی تو اورنگزیب نے کلائی پر جھک کر وقت دیکھا۔ کہنے لگا، ہمیں پورے 10 بجے یہاں سے نکلنا پڑے گا۔ ہائیڈ آؤٹ تک جاتے ہوئے بھی 15-20 منٹ لگ جائیں گے۔ وہ تھوڑی دیر بعد وقت دیکھ لیتا تھا۔ فلم کافی لمبی تھی۔ آخری بار وقت دیکھ کر کمانڈو اورنگزیب اٹھ کھڑا ہوا۔ ہمیں چلنا چاہیے۔ ہم گیلری کی سیڑھیاں اتر کر نیچے آ گئے۔ سردی کی وجہ سے سینما ہال کی لابی خالی پڑی تھی۔ ہم خاموشی سے پتلون کی جیبوں میں ہاتھ دیے تیز تیز قدموں سے چلتے بازار میں ایک جانب مڑ گئے۔ اب اورنگزیب میرا گائیڈ تھا، اسے معلوم تھا کہ اسے کہاں جانا ہے۔ وہ شملے کی مال روڈ پر آ گیا۔ مال روڈ کی اکثر دکانیں بند ہو چکی تھیں اور بازار تقریباً سنسان تھا، جہاں سے ایک راستہ نیچے شملے کے تنگ بازار میں جاتا تھا۔ ہم اس بازار میں اتر گئے۔ دونوں جانب ڈھلانی چھتوں اور لکڑی کے چھجوں والے مکان ایک دوسرے میں گھسے ہوئے تھے۔ یہ مقامی آبادی والا بازار تھا۔ چھوٹی چھوٹی دکانیں تھیں جو کچھ کھلی تھیں، کچھ بند۔ ہم بازار میں کافی نیچے اتر گئے تو ایک پہاڑی ٹیلے کے پاس سے ہوتے ہوئے ہموار جگہ پر آ گئے۔ یہ ایک ٹیرس تھا، اس کے آگے پتھر کی سیڑھیاں نیچے جاتی تھیں۔ سیڑھیوں کے آگے ایک نالا بہ رہا تھا جہاں سڑک کی بتیوں کی تھوڑی روشنی آ رہی تھی۔ ہم اس روشنی میں نالے کے ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ اب ہم غیر آباد پہاڑی علاقے میں سے گزر رہے تھے۔ اورنگزیب ایک جگہ نالے سے ہٹ کر 2 ٹیلوں کے درمیان والے راستے پر آ گیا جہاں اندھیرا تھا۔ اس نے رک کر ایک ٹیلے کا جائزہ لیا، پھر اس کے ساتھ ساتھ چل پڑا۔ میں اس کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ ہم ایک ایسی جگہ پر آ گئے جہاں نیچے کچھ فاصلے پر کسی گاؤں کی روشنیاں جھلملاتی نظر آ رہی تھیں۔ ذرا چڑھائی چڑھ کر ایک جگہ درختوں میں مجھے اندھیرے میں ایک مکان دکھائی دیا۔ قریب گئے تو میں نے دیکھا کہ وہ لکڑی کا ایک کیبن تھا۔ اندھیرے میں اس کی ڈھلانی چھت ایک طرف کو جھکی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ اس کے احاطے میں لکڑی کے 2-3 بڑے بڑے بالے پڑے تھے۔ کمانڈو اورنگزیب وہاں رک گیا۔ اس نے چاروں طرف کا جائزہ لیا، پھر مجھے وہیں ایک جانب اندھیرے میں رکنے کا کہہ کر آگے بڑھ گیا۔ اس نے اپنی جیکٹ کی اندرونی جیب میں سے پستول نکال کر اپنی پتلون کی جیب میں رکھ لیا۔ اس کا سیدھا ہاتھ بھی پتلون کی جیب میں تھا۔ لکڑی کے کیبن کا دروازہ بند تھا۔ کمانڈو اورنگزیب نے دروازے پر ہاتھ سے 3 بار خاص اشارے کے انداز میں دستک دی۔ اندر سے کسی نے دروازہ کھول دیا۔ کمانڈو اورنگزیب اندر داخل ہوا، دروازہ فوراً بند ہو گیا۔ میں لکڑیوں کے شہتیروں کے پاس ایک طرف ہو کر اندھیرے میں کھڑا تھا۔
मेरी निगाहें केबिन के दरवाजे पर लगी हुई थीं। इतने में दरवाजे के दुर्जों में से मुझे हल्की सी रोशनी नजर आई। अंदर किसी ने शायद लैंप रोशन किया था। इतने में दरवाजा दोबारा खुला। कमांडो औरंगजेब ने इशारे से मुझे बुलाया। मैं केबिन के अंदर चला गया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।